Hello everyone. I will continue with the nomenclature of tertiary amines. Okay. Now tertiary amines, when all three alkyl groups are same. Okay, we write trimethylamine, and in IUPAC, take one of them parent and two are substituent. Both the substituent are attached on nitrogen. So we write name as N, N dimethyl methanamine, because methanamine is a parent compound. Now second example, all three ethyl group. So we write triethylamine. Now as one of them is parent and these two are substituent, but both the substituent are attached on nitrogen, and therefore the name becomes NN diethyl ethanamine. अभी दो बार कैपिटल N का मतलब होता है दोनों इथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच्ड है. So that is why we write NN diethyl ethanamine. Now this is third example. Come on, give me the common name for this first. Try out common name. Okay. Zen, Om, Amruta, all are correct. Shadab, ethyl will come first alphabetically. So write ethyl, then dimethylamine. Alphabetically, E comes first. So ethyl, dimethylamine. Rest all are correct. Now give me IUPAC name for this. Give me IUPAC name for this. N, N dimethyl ethanamine. Come on, this is parent and these two are substituent. Yeah, Amruta, correct. NN dimethyl, same. NN dimethyl. Instead of methanamine, we have to write here ethanamine only we have to write. Nah? NN dimethyl ethanamine. These both are methyl. So NN dimethyl ethanamine is a parent. Come on, this one. Common name. Go alphabetically. Diethyl methyl. Yeah, Amruta is correct. Tom is also correct. Okay. Diethyl methylamine. Now one of them is the bigger one of them is parent. They both are substituent. So what will be the IUPAC name? The bigger one of them is parent. This one is parent. And this both are substituent. So what will be the IUPAC name? N-ethyl, N-methyl ethanamine. NN diethyl methyl ethanamine. Saad, you are correct, but NN अलग अलग लिखना है. NN ethyl methyl नहीं. N ethyl पहले, फिर N methyl और फिर ethanamine. दोनों N साथ में नहीं लिख सकते हो. Okay?
So N-ethyl, N-methyl ethanamine. या ओम यू आर करेक्ट. ओके, अलग अलग लिखना पड़ेगा और ये कैपिटल एन लिखना जरूरी है ना. ओके, कैपिटल एन. हाँ, capital N indicates they are attached on nitrogen. So N-ethyl, N-methyl, फिर ethanamine. चलो ये वाला ट्राई करो. C6H5 क्या होता है बताओ. Common name. Try out common name. हाँ, साथ करेक्ट दिस टाइम. Dimethyl phenylamine. Dimethyl phenylamine या तो dimethyl aniline ऐसे भी बोलोगे तो भी चलेगा. ओके, सो देखो यहाँ पे dimethyl phenylamine कॉमन नेम और डाइमिथाइल एनिलीन ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा. अभी आईयूपीसी नेम बताओ इसका. व्हाट विल बी आईयूपीसी नेम फॉर दिस? द बिगर वन इज द पेरेंट. या come on, bigger one is the parent and the smaller ones are substituent. चलो आईयूपीसी नेम ट्राई करो. ऋषभ रॉन्ग है. ऋषभ ट्राई अगेन. मैंने बोला बड़ा वाला पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है. ऋषभ ट्राई अगेन. हाँ, आयशा करेक्ट. N dimethyl benzenamine. ऋषभ करेक्ट दिस टाइम. N dimethyl aniline लिखोगे तो भी चलेगा. N dimethyl benzenamine. Okay, aniline is also called benzenamine. Okay, N dimethyl aniline or N dimethyl benzenamine. Aniline is called benzenamine. Aniline common में भी ले सकते हो, IPC में भी ले सकते हो. So it is allowed. I hope everybody is copying all these examples simultaneously. I will do methods of preparations. यहाँ पे C6H5 की जगह पे बेंजीन रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो. Is it clear? Now we'll do methods of preparations. Basically देखो 4 मेथड है, but there are some methods later on we'll do it. 4 मेथड है. First one Roman number from alkyl halide or a Hofmann's ammonolysis. We have already done this in halogen derivatives or halogen containing compounds. Okay, from alkyl halide, Hofmann's ammonolysis. When alkyl halide reacts with ammonia, alcoholic ammonia at 373 Kelvin, we'll get primary amine in a sealed copper tube. Okay, HX eliminate hoga. But I told you this reaction has a disadvantage that it does not stop at mono substitution. It forms di, tri and tetra substituted product also. तो यहाँ पे हो जाएगा ethyl amine further reacts with alkyl halide to form secondary amine. Secondary amine further reacts with alkyl halide to form tertiary amine. Tertiary amine further reacts with alkyl halide and form quaternary salt. Come on, give me the name of this quaternary salt. Anybody can give me the name of this quaternary salt. How will you write this salt name? सिखाया है मैंने अभी लास्ट चैप्टर में ही हमने किया था.
NH4Br होता तो हम उसको बोलते हैं अमोनियम ब्रोमाइड। अभी 4 हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, तो इसको कैसे नाम दोगे? इन जनरल इसको क्वाटरनरी सॉल्ट बोलते हैं, but what will be the common name? मतलब one common name you have to write for this compound. So what you will write the name for this compound? Ethyl bromide when react with alcoholic ammonia we get ethylamine. तो यहाँ पे लिखना है reaction do not stop at this stage. Ethylamine further react with alkyl halide to give secondary amine. It further reacts with alkyl halide to give you tertiary amine. It further reacts with alkyl halide and it forms quaternary salt. ये फोर्थ मॉलिक्यूल जब ऐड करोगे तो यहाँ पे HBr एलिमिनेट नहीं करोगे। फर्स्ट 3 स्टेप में HBr निकलेगा, फोर्थ स्टेप में HBr निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी H बचा ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ऐड हो जाता है और ये क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। किसी को इसका नाम पता है तो बताओ मुझे, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ethylamine C5 अच्छा arrow C5 C2 dash NH2 plus Br HBr ethylamine 73 K upon sealed Cu tube seal Cu tube પછી next H5C2 dash NH2 plus H5C2 dash Br that gives heat minus HBr. C2 Yes, anyone? The name of this compound? NH4Br होता तो हम लिखते हैं अमोनियम ब्रोमाइड। अभी चारों हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे इथाइल लगा दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। Yeah, correct, Aisha. It is tetraethyl ammonium bromide. 4 इथाइल ग्रुप है, तो टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, दैट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्ट। और इसको जनरली कॉमनली बुलाते हैं क्वाटरनरी सॉल्ट। इसको क्वाटरनरी सॉल्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। इन कॉमन इट इज कॉल्ड कॉमनली इट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, या तो क्वाटरनरी सॉल्ट भी लिख सकते हो। I hope everybody has copied this reaction.
अभी इसमें एक दो पॉइंट और याद रखनी है. आई चेंज द स्लाइड. See the next slide, I'll show you. This reaction is also known as alkylation of ammonia. This reaction is also known as alkylation of ammonia. Hoffman's ammonolysis reaction. अगर ये रिएक्शन में हमने अमोनिया एक्सेस में लिया, if you take ammonia in excess, the primary amine will be the major product. Primary amine will be the major product. पर ऐसा नहीं है कि बाकी सब नहीं बनेगा, पर ये मेजर प्रोडक्ट है. और ये वाला पार्ट याद रखना है कि इसमें अगर हमने अराइल हलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग नहीं ले सकते. सो एरोमेटिक न्यूक्लियस मतलब यहाँ पे हम अगर क्लोरोबेंजीन लेंगे और अमोनिया से रिएक्ट करेंगे तो एनिलीन नहीं बनेगा. ओके, सो अराइल हलाइड डू नॉट रिएक्ट विद अमोनिया. और दूसरा, टर्शरी अल्काइल अमाइंस नहीं बना सकते. मतलब आगे अगर तुमने टर्शरी अल्काइल हलाइड लिया ना, तो अल्कोहलिक मीडियम में इट विल अंडरगो डिहाइड्रोएलोजिनेशन टू फॉर्म अल्कीन्स. तो टर्शरी अल्काइल हलाइड नहीं ले सकते. दिस बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेई क्वेश्चंस. ओके, सो कीप इन माइंड, अराइल हलाइड डू नॉट रिएक्ट विद अमोनिया, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होता. मतलब यहाँ पे अगर तुमने क्लोरोबेंजीन डायरेक्टली रिएक्ट विद अमोनिया तो इट विल नॉट गिव यू एनिलीन. ओके, और दूसरा याद रखना है कि टर्शरी अल्काइल अमाइन नहीं बना सकते. मतलब यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हलाइड लोगे, जैसे कि टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक अमोनिया, तो आंसर विल नॉट बी टर्ट ब्यूटाइल अमाइन. ऐसे नहीं आंसर आएगा, वहां पे आइसोब्यूटिलीन बन जाएगा. So that you have to keep in mind. So copy down these two notes also, they are very important. और जो exceptions है वही MCQs में आते हैं, इसलिए exceptions अच्छे से learn करना very important. I hope you all have copied the slide. I'll change the slide now. Second method of preparation, Gabriel-Thal imide synthesis. Again, it is from alkyl halide only. Alkylation of Thal imide. Now, what is imide? NH2 लिखो तो अमाइन होता है, NH2CO लिखो तो अमाइड बनता है. खाली NH लिखो तो इमाइड, सेकेंडरी अमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम इमाइड बुलाते हैं. ओके, नाउ दिस इज Gabriel-Thal imide synthesis. Benzene ring with 2 COH called COOH. अगर बेंजीन रिंग विद 2 COH ग्रुप होता तो उसको थैलिक एसिड बोलते हैं. और थैलिक एसिड में से ये डेरिवेटिव बना है, इसको हम थैल इमाइड, ये कंपाउंड को बुलाते हैं थैल इमाइड. अभी इसको है ना, सबसे पहले अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्ट करो, यहां से OH और यहां से H एलिमिनेट होगा और ये पोटेशियम लग जाएगा यहाँ पे. तो ये पोटेशियम सॉल्ट को बुलाएंगे थैल पोटेशियम थैल इमाइड. ओके, ये थैल इमाइड है, खाली पी साइलेंट है यहाँ पे, पी साइलेंट, इसको थैल इमाइड बुलाते हैं. अभी ये हो जाएगा पोटेशियम थैल इमाइड. पोटेशियम थैल इमाइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करो. अब यहाँ पे KX निकल जाएगा, KX निकल जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा. सो विल गेट अल्काइल ग्रुप लाइक दिस. ओके, अभी इसका नाम लिखना है तो N, जो भी अल्काइल ग्रुप का नाम है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, N मिथाइल थैल इमाइड, ऐसे नाम हो जाएगा. तो ये अल्काइल ग्रुप का नाम N करके लिखना है, कैपिटल N करके.
देन एन अल्काइल थैलिमाइड। अभी इसको हाइड्रोलाइज करो, 2 NaOH और या तो 2 KOH भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ना देखो कैसे रिएक्शन होगा, ये 2 हाइड्रोजन ये RNH के साथ चले जाएंगे, तो RNH और 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। और ONA 2 मॉलिक्यूल है ONA के, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा, तो यहाँ पे सोडियम थैलेट, ये थैलिक एसिड है और इसके सॉल्ट को हम बुलाते हैं सोडियम थैलेट, और ये प्राइमरी अमाइन। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे यूज करोगे वो अमाइन बनेगा। अब ये जनरल रिएक्शन कॉपी करो और सेम रिएक्शन यहाँ पे इथाइल लेके कंप्लीट करो। कॉपी डाउन द जनरल रिएक्शन एंड डू द एंटायर रिएक्शन सेम, खाली यहाँ पे चेंज होगा, ये आर की जगह पे यहाँ पे इथाइल लगेगा, यहाँ पे इथाइल लगेगा और यहाँ पे इथाइल लगेगा, तो प्रोडक्ट इथाइल अमाइन बनेगा। हाँ, सो कंप्लीट द सेम, पहले कॉपी करो ये जनरल रिएक्शन और फिर इथाइल लेके ये कंप्लीट करो। I'll repeat the entire reaction once again. देखो पहले ये कंपाउंड को बुलाते हैं थैलइमाइड। अभी इसको फर्स्ट ये KOH से रिएक्ट करो, अल्कोहलिक KOH से, यहां से OH और यहां से H एलिमिनेट होगा, so we'll get a product called potassium थैलइमाइड, पोटेशियम थैलइमाइड। अभी इसको है ना अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करो, ये KX एलिमिनेट हो जाएगा और ये R नाइट्रोजन पे लग जाएगा। अभी ये कंपाउंड का हो जाता है, जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका नाम N अल्काइल थैलइमाइड। समझो यहाँ पे मिथाइल होता तो N मिथाइल थैलइमाइड, इथाइल होगा तो N इथाइल थैलइमाइड, ऐसे बन जाएगा। अभी इसको 2 NaOH से रिएक्ट करो, अभी 2 मॉलिक्यूल है NaOH के, तो ये दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन R के साथ RNH के साथ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन विल गो विथ गेट अटैच टू नाइट्रोजन, सो ये RNH2 बन जाता है। और यहाँ से ONA ऊपर भी लगेगा ONA नीचे भी लगेगा, तो ONA ऊपर भी लगा नीचे भी लगा, तो ये कंपाउंड का नाम हो जाता है सोडियम थैलेट। बेंजीन रिंग विथ 2 COH ग्रुप इज कॉल्ड थैलिक एसिड, और उसके सॉल्ट को बुलाओगे सोडियम थैलेट, and along with that we'll get primary amine. Now repeat, copy down this entire reaction and then rewrite by using, instead of R, use ethyl and rewrite the entire example. First copy down general reaction and then do entire reaction using ethyl chloride. Do entire reaction using ethyl chloride here. यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे इथाइल लग जाएगा, यहाँ पे भी इथाइल लग जाएगा आर की जगह पे। नीट जेई में ये बहुत सिंपल है कि अगर थैलइमाइड के साथ कौन सा अमाइन बनेगा वो आइडेंटिफाई करना है, तो खाली ये अल्काइल ग्रुप देख लो बस, बाकी कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन, यहाँ पे इथाइल है तो इथाइल अमाइन, मतलब यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर रिएक्शन। और थैलइमाइड के साथ ये एक ही एग्जांपल है, तो बहुत इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। नीट जेई में कभी भी ऐसा पूछा, एंड थैलइमाइड रिएक्ट्स विद इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, बीच में ये सब देंगे, पर फाइनल आंसर क्या होगा, जो अल्काइल ग्रुप यूज हुआ है वही अमाइन बनेगा। और इसमें सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही बन सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हो। यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन नहीं ले सकता, सो आई कैन नॉट प्रिपेयर एरोमेटिक अमाइन बाय दिस मेथड। तो ये सब नोट में लिख दो नीचे, एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, we get only primary amines by this method.